Better in last class we are discussing about equation of motion in uniformly accelerated motion. Equation of motion in uniformly accelerated motion. Uniformly या बेटा is constant accelerated motion. Constant accelerated motion. But as here in this case what we have observed is A is equals to acceleration is equal to change in velocity upon time. Beta your graph was like this. Over x-axis time is there. Over y-axis velocity is there. Here velocity over y-axis. And what is the initial velocity at time 0? What is the initial velocity? U. And at time t, the velocity of the body becomes, but a body की velocity क्या हो गई? V. And this was the slope. Tan theta was the slope. Now you see here, beta, A is equal to dv upon dt. Beta, dv differential change in velocity in differential time dt. Change in velocity with respect to time. So beta, we can write dv as A into dt. But I'm integrating both sides. Both sides. Integrating means to find out the total change. What is the change in velocity? The change in velocity occurs from u to v or v1 to v2. Let v1 to v2. We know that initial velocity u and final velocity v2 is 2. v2 is the final velocity and v1 is the initial velocity. A is constant. So take it constant part outside the integration and time from initial time t1 say final time is t2. बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या मैंने बताया था बेटा? v होता है और मॉडुलस लगाएंगे बेटा. इनिशियल लोअर लिमिट क्या है बेटा? v1 and upper limit is v2 is equal to a into time t. Lower limit t1, upper limit t2. But हम क्या करते हैं? We put first upper limit in the variable terms. तो बेटा after this इसे solve करेंगे तो upper limit को पहले रखते हैं बेटा, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट को यहाँ रखते हैं. t1 is equals to बेटा a. अपर लिमिट क्या है बेटा? टाइम की अपर लिमिट है t2 माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा? t1. पावर तो 1 ही है बेटा. ये आ गया इक्वेशन बेटा. फ्रॉम द above condition, see here, this is the general expression. Now from the above condition as given in the graph, above condition, but what is the final velocity? According to this graph, at time t the final velocity is v. What is the final time? T. What is the initial time? Initial time is 0 to t time. Initial time is 0. And what is the acceleration? A. What is the initial velocity? Is at time 0. What is the velocity? v1 u. Initial velocity u. And final velocity, final time is t. But the time varies from 0 to t. So final time is t and initial time t1 is 0. At time t, what is the final velocity? V. Small v. So beta u comes this side. V is equals to u plus at. This is known as the first equation of motion. This is known as the first equation. This is the specified case and this is the general case. This is the special case. What is the special case? When we have taken the initial velocity at 0. But this equation is applicable to any case. बेटा ये जो केस है आपके लिए, ये केस अप्लीकेबल है हर केस में. बेटा यहाँ हमने अज्यूम किया इनिशियल टाइम ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हो गया तो 0 टाइम है बेटा, और फाइनल टाइम क्या है बेटा? t2. t2 कहाँ है बेटा? ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बना. फाइनल टाइम t, तो t2 t. बेटा इनिशियल वेलोसिटी v1 क्या है? u. स्पेशल केस दिखा. और फाइनल वेलोसिटी v2 कितना है बेटा? v.
ये ग्राफ दिया हुआ टी समय पर वेलोसिटी, तो स्पेशल केस है ये, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड दिस इज द जनरल केस. v is equals to u plus at. This is known as the first equation of motion. Now बेटा आप देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ, तो फर्स्ट इक्वेशन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन, बेटा फर्स्ट इक्वेशन आप देखिए ध्यान से किसके बीच है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल क्या है बेटा, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल t 0 to t the velocity changes from u to v. During time interval 0 to t the velocity changes from u to v, u to v. So this is the first equation of motion. Yes beta, any doubt is there, any problem is there? No sir. No. No sir. Now you see here beta, second equation of motion, second equation of motion, second equation of motion. We will derive the second equation of motion formula. But as here, you know, v is equals to क्या होता है बेटा, dx upon dt, rate of change of displacement. From equation 1. From equation 1. But what is the value of v? U plus at. You put it in the v. What is velocity? Velocity at a particular instant of time is rate of change of displacement with respect to time. But इस v की जगह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से u plus at रख सकते हैं, is equals to dx upon dt. बेटा फिर से वही पुट कीजिए, dx is equals to क्या होगा बेटा, dx is equal to ये dt दोनों से प्रोडक्ट हो जाएगा, u into dt plus a t into dt. बेटा यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है, here u initial velocity and a is constant, ये दोनों कांस्टेंट हैं. By integrating above equation, by integrating above equation, by integrating above equation. बट above equation को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा ये रिलेशन, बेटा ये देखिए, बेटा dx बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया, डिस्प्लेसमेंट मूव किया बेटा स्ट्रेट लाइन में. बेटा इससे हमने डिस्टेंस बोला, बेटा स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे. वी आर स्टडीइंग अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल. तो बेटा dx, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 था और फाइनल डिस्प्लेसमेंट था इज इक्वल टू टाइम. टाइम बेटा t1 से t2 टाइम ले लिया, t1 से t2 प्लस a t इंटू dt का इंटीग्रेशन हो गया बेटा, t इंटू dt का इंटीग्रेशन हो गया, टाइम इनिशियल टाइम t1 से फाइनल टाइम t2 तक. इसे ऐसे कर दिया जाए. नाउ बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x. व्हाट इज द लोअर लिमिट, x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट. बेटा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t. व्हाट इज द लोअर लिमिट, इनिशियल टाइम है t, फाइनल टाइम इज t2 प्लस a. बेटा t into dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द पावर 1. तो डू यू रिमेंबर n प्लस 1, बेटा इंटीग्रेशन में पावर एक यूनिट इंक्रीज हो जाता और यही पावर यहाँ n प्लस 1 आ जाता था. और फिर हम लोअर लिमिट क्या देंगे बेटा t1 और अपर लिमिट क्या देंगे t2. दिस इज नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू इनटू व्हाट इज अपर लिमिट, t2 माइनस t1. बेटा देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, टू कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए यहां पर. बेटा अपर लिमिट क्या है बेटा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर. बेटा दिस इज द जनरल केस, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट.
General equation for distance moved by the body, or distance will be equals to displacement. Why? Because the motion is taking place in a straight line. Now where is the special case? Here t1 is 0 and at time 0 the body is at origin. So beta, what is x1? 0 at time t. Initial time is 0 and at time 0, because see here, this is the special case. For example, we are observing the motion of the body, and for us, when the time starts observing the time at time 0, we keep the body on the origin. Then x1 is 0 origin. And what is the final time? T2 is equals to t. Final time is t, and the body moves to final displacement s. 0 to s. 0 to s is the total distance moved by the body. Now this equation becomes, what is the final distance? S minus, what is the initial position? 0, that is on the origin. U, initial velocity. But what is the final time? T. Final time is t and initial time is 0. बेटा यहाँ पर a by 2 आया, a by 2. बेटा final time क्या है बेटा? 32 is t and initial time is 0. t square minus 0 square. तो बेटा आपका इक्वेशन ये आ गया, s is equals to ut plus half at square. बेटा ये जनरल केस है for second equation of motion, when we assume that, when we consider that at time 0, that is what is the initial time? t1 is 0. At time 0, when we just start to observe the motion, the body was on the origin point. That's why what is the value of x2, x1 0, and the body from origin to moves what distance? S. What distance body moves? S. So 0 to S. So S is the distance moved by the body during time interval t. This t is tu, t2 minus t1, time interval during which the body moves distance what? S. This is known as the second equation of motion. Now see here beta, if in the same equation, from the same equation we will derive some another formula, that is distance moved by the body during n second. About that one I will discuss after just solving third equation. तो बेटा अब देखिए, ये अगर second equation of motion, तो second motion of equation is basically the relationship between initial velocity, acceleration, time and distance moved by the body. बेटा अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम डेरिवेशन कर रहे हैं. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा ये देखिए बहुत आसान है, और ये बेटा लास्ट, ठीक है बेटा. अब इसे देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? dx नहीं, e इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटा अगर इसी इक्वेशन में हमने ऊपर dx लिखा और नीचे dx, कोई फर्क पड़ेगा क्या? dx कट जाएंगे, यही आ जाएगा इक्वेशन. एनी चेंज विल बी देयर. बेटा a is equal to rate of change of velocity with respect to time. बेटा हमने इस इक्वेशन में इसी सबके वन हो जाएगा, ये नो चेंज, ये इक्वेशन. आप बताइए dx अपॉन dt क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या होता है बेटा? बेटा बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी बेटा. यस, वेलोसिटी तो v इंटू dv लिख सकते हैं बेटा, यानी कि एक्सेलरेशन को v इंटू dv भी लिखा जा सकता है बेटा, और नीचे में dx लिख सकते हैं. ये dx लिख सकते हैं बेटा ऐसे.
बेटा वी कैन राइट दिस लाइक दिस. ओके. नो बेटा ये देखिए b इंटू डी यहां रहने दीजिए बेटा और a इंटू dx यहां ले जाइए. बेटा यहां लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. बोथ साइड्स. तो बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में टोटल चेंज क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन में टू फाइंड आउट द टोटल चेंज. बेटा वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां तक होगा बेटा? u v1 से v2 प्रीवियस केस एज इट इज जो पिछली बार चले थे v1 से v2. बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. बेटा यहां तो dx था बेटा. क्या था? a into dx. ये dx यहां आएगा बेटा और dx अपॉन dt क्या हो गया बेटा? v into dv. v into dv एंड dx इधर चला है लेफ्ट साइड डिवीजन में बेटा. इधर आएगा तो प्रोडक्ट होगा a into dx. बेटा displacement moved by the body from initial position x1 to final position x2. Now beta v into dv, what is the power? 1. So n plus 1 upon 2, same. This is v1, this is v2. Now a into, what is the integration of dx? What is the integration of dx? X. Beta x1, x2. Any confusion is there beta? Yes. No, sir. No. No, let's see. Now you see here. बेटा सी here ये टू कांस्टेंट है बेटा. अपर लिमिट को पहले रखिए बेटा. फाइनल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी बेटा? v1 वेरिएबल के पास. बेटा सेम प्रोसीजर करना है. v1 का बेटा बाई 2 तो कांस्टेंट है और यहां देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा? a इंटू क्या लिखेंगे बेटा? अपर लिमिट क्या है? x2 माइनस x1. बेटा ये 2 जाके प्रोडक्ट होगा. v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस x1. बेटा ये इधर ले जाइए. ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस साइन इधर जाएगा तो बेटा क्या होगा? इट विल बी प्लस प्लस 2a x2 minus x1. Beta, this is the third equation of motion, but this is the general case. This is the general case. What is the specific case? What is the initial velocity? U. What is the final velocity? V. What is x1 initial displacement bodies at origin and final displacement moved by the bodies s0 to s. Now it is clear? Yes, sir. ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? v1 u हो जाएगा बेटा. v2 की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u स्क्वायर प्लस 2a ये s माइनस 0. फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? s. वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ऑरिजिन पर था. तो बेटा ये इक्वेशन ये आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. This is known as third equation of motion. Third equation of motion. This is known as third equation of motion. Here we have studied about three equations of motion. V is equals to u plus at. S is equal to ut plus half at square. And v square is equal to u square plus 2as. See here, in all these cases, velocity of the body is increasing, that is acceleration is positive. Now see here, beta, what happened? If braking force is applied and the velocity of the body is decreasing with a constant rate, then if acceleration will be negative. If acceleration will be uniformly negative. यूनिफॉर्म. बेटा अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नेगेटिव होगा तब क्या होगा? बेटा सब जगह एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v is equals to u minus at.
s इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ut माइनस हाफ एट स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बेटा यही बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, और प्लस की जगह केवल आपको माइनस पुट करना है, u स्क्वायर प्लस 2a, बेटा ये ऑल दिस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएंगे. This is the case of the word motion. When the braking force is applied or retardation is there. See here beta, if a body is moving under gravity, for motion under gravity, motion, beta see here, you remember this formula. If we consider the motion of a body under gravity means body is falling vertically downward under the attraction force of earth. You know that when any body falls towards the center of earth, then due to attraction of earth, motion, see here, what is our topic? Motion under gravity. Under gravity, it means the body is falling down. The body is falling down on the earth's surface. This is earth. But see here, any body is falling down, a mass of body is falling down. You know, because of gravitational pull of earth, in every 1 second, what is the increase in velocity? 9.8 meter per second. In every second, that is known as per second square. That is known as acceleration due to gravity. It means that बेटा क्या होगा, ग्रेविटी पुल के कारण एक बॉडी को अगर बेटा इनिशियली जीरो वेलोसिटी से छोड़ेगा तो बेटा 1 सेकंड बाद, कितनी देर बाद इसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, हमने फ्री फॉल किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से, what is the initial velocity we have given? 0. बेटा 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी आप देखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया. बेटा फिर और वो तो अट्रैक्ट हो रहा है, the body is continuously being attracted by the earth. So बेटा 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी 9.8, और 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6. बेटा हर एक सेकंड में 3 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है बेटा, फिर 9.8 बढ़ गई, 27.7 हो गई बेटा. कितनी हो गई बेटा, यानी कि हर एक सेकंड में कितनी बढ़ जा रही है, 9.8 इंक्रीज हो जा रहा है वेलोसिटी, प्लस 9.8 इंक्रीज हो जा रहा है, प्लस 9.8. तो जब नीचे आ रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, और जब इसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे बेटा, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करेंगे, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो बेटा क्या होगा, हर एक सेकंड में जब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, ये अर्थ हो गया बेटा, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण जब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स तो नीचे लग रहा है बेटा. तो जैसे ही हमने फेंका, हर एक सेकंड बाद जीरो, यहाँ टाइम क्या हो जा रहा है बेटा, जीरो. 1 सेकंड बाद टाइम क्या हो जा रहा है बेटा, 1 सेकंड बाद उसकी यहाँ वेलोसिटी अगर u है तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 9.8 घट जाएगी बेटा. यही ग्रेविटी ऊपर चलेंगे तो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी घट जाएगी 9.8 इंटू 2, यानी कि 19.6 घट जाएगी. यानी कि in every 1 second what is the decrease in velocity? 9.8. This is called retardation and this is called acceleration, because the bar and uniform acceleration, because fixed amount of velocity is increasing. So this is called motion under gravity, where acceleration is positive, that is rate in every 1 second. What is the change in velocity? 9.8 meter per second square. And here the decrease of velocity is 9.8.
meter per second square. So in this case, all the three equation of motion will be V is equals to U plus GT. When the body is falling down, what is the acceleration of the body? G. बेटा हर एक सेकेंड में 9.8 बढ़ेगी, तो टी सेकंड में कितना बढ़ा? 9.8 इंटू टी. 2 सेकंड में कितना बढ़ा? 9.8 इंटू 2. 3 सेकंड में कितना बढ़ा? 9.8 इंटू 3. 4 सेकंड में कितना बढ़ेगा? 9.8 इंटू टी. तो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी बेटा. सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा? एस. बेटा ये वर्टिकल डिस्टेंस मूव को यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर पुट करेंगे बेटा. और थर्ड इक्वेशन मोशन ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s के जगह h, a के जगह g. बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया और अगेंस्ट ग्रेविटी में बेटा वेलोसिटी घट रही है, तो ये फॉर्मूला को v इज इक्वल टू u माइनस gt. बेटा यहां माइनस लगता जाएगा, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन क्या होगा ये बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. यहां बेटा सब जगह माइनस लगेगा बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग. बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब बेटा इस पर सबसे बड़ी बात आ रही है, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, उन सभी प्रॉब्लमों को हम डिस्कस करेंगे. Because here this is the general equation for equation of motion. These three equation of motions are the equation of motion for which case? For uniformly accelerated motion of any body. बेटा देखिए जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेटा एक बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर से इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है बेटा? 1960 मीटर. बेटा यहां से आपने एक बॉल को फ्री फॉल करवाया. फ्री फॉल मींस बेटा आपने ड्रॉप किया. बेटा क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, what is the height of the building? 1960 meter. You drop a ball from the top of the building. And what is the question here? Find the time taken by the ball to reach to the bottom of the building. Time. बेटा क्या निकालना? टाइम. Time taken to fall to reach to the bottom of the building. और क्या निकालना बेटा? यहां से जब यहां आएगा, जैसे टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से टकराया, ये निकालना. तो अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे. वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे बेटा? s इज इक्वल टू ut प्लस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. बेटा क्यों? h मालूम है हमें 1960 मीटर है बेटा. इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाने वाला है. प्लस हाफ जी की जगह क्या पुट करेंगे? 9.8. और टी क्या बेटा? यहां से यहां दूरी मूव करने में समय है, टाइम है. तो बेटा इसे सॉल्व कीजिए. 1960 प्लस ये बेटा क्या होगा? 4.9 टी स्क्वायर. बेटा ये इधर आ जाएगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1960 बाई 4.9. बेटा स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या होगा अगला स्टेप में? 1960 बाई 4.9 का रूट अंडर हो जाएगा. बेटा टाइम निकल गया यहां से यहां गिरने में. अब आया बेटा कितनी वेलोसिटी से ये जमीन को हिट करेगा? With what velocity this ball will hit the earth surface when it will reach the bottom of the building? तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. v is equal to u plus gt. Why gt? 18 because the ball is falling under gravity on the earth surface. So as we know, because of the gravitational pull, बेटा बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है? What is the acceleration of the body? g. तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे ऊपर से नीचे आने का.
तो बेटा u क्या है, बॉडी की 0 है, g कितना है बेटा 9.8, और ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा बेटा, ऊपर से नीचे आने में क्या समय लगा बेटा, ये समय लगा 1960 बाई 4.9। ठीक है बेटा, इसका रूट अंडर, इस वेलोसिटी से ये हिट करेगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन आप समझ आ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा ऐसे क्वेश्चन को, यस सर, किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते, बशर्ते कि इस इक्वेशन में ये होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्टेंस नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। ये डिस्टेंस तब तक होगा जब तक कि सेम डायरेक्शन में मोशन चल रहा है। बेटा ये तो सेम डायरेक्शन में जाके इधर घूम जा रहा है, तब ये डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होगा, जो कि मैंने बताया था, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन इन वन डायमेंशन। बेटा ये एक स्टेप में, बेटा आप निकालेंगे 9th क्लास में पढ़ते थे, यहां से यहां गया बॉल, जाके रुक गया, तो यहां से यहां जाके निकालते थे। बेटा क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 98, तो फॉर्मूला लगाते v इक्वल टू u माइनस g t1, t1 निकल गया यहां से। फिर अब यहां से डिस्टेंस निकाला, कितना दूर ऊपर गया भाई, इतना दूर, तो टोटल हाइट होगी 196 प्लस दिस। अब यहां से ऊपर से गिरने में समय, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया बेटा 0, जाके रुक गया, तो फिर इतनी दूरी आने में कितना समय लगेगा, फिर फॉर्मूला में पुट करते हैं h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऊपर से नीचे आ रहा है। बेटा काफी लंबा स्टेप हो गया, अब हमें वो स्टेप नहीं करना है बेटा, अब हमें मॉडिफाइड स्टेप करना है। अब ये स्टेप करेंगे क्लास 11th में। बेटा आप समझ रहे हैं, कहानी वहां की कहानी वहीं छोड़, अब हमें इस स्टेप से आना है, क्योंकि आगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और बाकी चीजें जब पढ़ेंगे तो वहां बेटा ये प्रॉब्लम आएगी। नाउ सी हियर बेटा, what is our next topic? Distance moved during nth second. Distance moved during nth second. nth second. बेटा n सेकंड का मतलब क्या हुआ, लेटर सी, for uniformly accelerated motion, for uniformly accelerated motion. This is the case for uniformly accelerated or retarded motion. See what happened, for example we are taking the example of motion under gravity. बेटा आप अगर किसी बॉडी को इनिशियली फ्री फॉल करवाएंगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0, आप यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, और अंडर ग्रेविटी ये बॉल गिर रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन बेटा g। बेटा एक सेकेंड बाद बॉल कितनी दूर मूव किया, इस एक सेकेंड के दौरान, बेटा एक सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, ut, u 0 था बेटा, ut टर्म 0 हो जाएगा, हाफ g क्या बेटा 9.8 इंटू टी स्क्वायर, एक सेकेंड के दौरान, बेटा ये डिस्टेंस होगा 4.9 मीटर। यानी कि पहले सेकंड में as we are dropping the body, बेटा earth is attracting any body, so that is uniformly accelerated motion। बेटा फर्स्ट सेकंड में उसने 4.9 मीटर डिस्टेंस मूव किया। बेटा अगर सेकंड की बात करें, यहाँ टाइम जो है 0 है, बेटा यहाँ समय है 1 सेकंड, बेटा 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, तो आप क्या देखेंगे 0 से t में कितना मूव किया, 0 से 2 सेकंड में कितना मूव किया, माइनस ये सेकंड, तो बेटा 0 से 2 सेकंड में जो डिस्टेंस, बेटा आपको केवल ये डिस्टेंस निकालना है, तो आप निकाले 0 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, u तो 0 है बेटा, हाफ g टी स्क्वायर, टोटल टाइम है 2 सेकंड, 2 सेकंड का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, माइनस ये 1 सेकंड का डिस्टेंस, 2 सेकंड का डिस्टेंस माइनस 1 सेकंड का डिस्टेंस, बेटा ये होगा हाफ g स्क्वायर।
बेटा g/2 सब में कॉमन रहेगा, g/2 में कॉमन रहेगा बेटा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3। बेटा ये जो डिस्टेंस था g/2 था, ये जो डिस्टेंस था बेटा g/2 था, और ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 3 टाइम्स ऑफ g/2 हो गया। यानी कि आपने जब ये डिस्टेंस मेजर किया तो वो 3 टाइम्स। बेटा उसी तरह सिमिलरली बेटा जब टाइम देखेंगे 2 से 3 सेकंड के बीच में, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा 5 टाइम्स ऑफ g/2। यानी कि जब आप ये रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो आता 1:3:5, इसी तरह चलता जाएगा 7:9:11:13। बट आप क्या देख रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस मूव, बेटा 0 से 1 सेकेंड तक के समय को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड। बेटा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच के टाइम को बोलते हैं सेकेंड सेकेंड, और ये हो जाएगा तीसरा सेकेंड, थर्ड सेकेंड 2 से 3। बेटा 0 से स्टार्ट के 0 से फर्स्ट सेकेंड के बीच के टाइम इंटरवल को कहते हैं बेटा पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड के बीच के बोलते सेकेंड सेकेंड। तो nth सेकेंड एक टाइम इंटरवल हो गया बेटा, nth सेकेंड का मतलब n-1 से n सेकेंड तक के बीच का। तो बेटा इस केस में बेटा देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, कि जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग 5th सेकेंड एंड ड्यूरिंग 8th सेकेंड। तो बेटा 5th सेकेंड का क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 5 7 और काउंट कीजिए बेटा 9 11 13, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 सेकेंड। तो बेटा ये रेशियो 5th सेकेंड और 8th सेकेंड का रेशियो क्या हो जाएगा 9:15, ऑड मल्टीपल ऑफ। बेटा ये जो मैंने रेशियो बताया, आर यू गेटिंग इट और नॉट? The distance moved during consecutive time interval. We have to derive the formula for distance moved during nth second. तो बेटा हम क्या करेंगे, let's see here, v is equals to हमने क्या लिखा था बेटा, v is equals to dx upon dt. Similarly v की जगह हमने क्या रखा था बेटा, u plus at is equals to dx upon dt. बेटा टाइम को इधर ले गए, u into dt plus at into dt. So what is the condition for distance moved during nth second? If it integrates the above equation, for time limit, what should be the time limit? The time limit should be n-1 to n second. Limit of time should be beta n second during nth second, मीन्स कि केवल nवें सेकंड में डिस्टेंस निकालना है कि 5वें सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया। ड्यूरिंग 8 सेकंड, 8 मीन्स कि 7 से 8 सेकंड के बीच के टाइम इंटरवल को 8 सेकंड कहते हैं। तो n सेकंड मीन्स n-1 to n। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आप बताइए। You try to understand. But for example, this is your clock. When your clock is showing here at 12, that is we treat that 0 hours. When you take 1 hours,
this after 1 hour, this hand will move here. And this time interval is called 1 hours. And when the our hand will reach here, this time interval is called first hour. But when this hour hand reach from first to second, but this time interval is called second hours. But similarly, when we reach from second to third hours. So nth hours means n minus 1 to nth second, nth second. During nth second, n minus 1 to n second. So what is the limit here? A t into dt. The time is n minus 1 to n is equals to dx. The integration of these terms from time n minus 1 to n, this is known as Sn. Distance moved during a particular instant of time, that is during nth second, is represented by Sn. That is during particular instant of time, nth second. बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? Yes, tell me what is the integration of dt? What is the integration of dt? Yes, tell me. What is the integration of dt? But dx का तो, since the time is taken from n minus 1 to n, this distance is represented by Sn. Distance moved during nth second. बेटा u constant है, dt का इंटीग्रेशन t. बेटा यह होगा n minus 1 to n. इसको आगे सॉल्व करेंगे. बेटा अपर लिमिट क्या है बेटा? n माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा? n minus 1. बेटा n minus n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू u. ये क्या हो जाएगा बेटा? u इंटू ये 0, u इंटू 1, u आ जाएगा. बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिए. a कांस्टेंट. बेटा t पावर 1, तो बेटा पावर 2 हो जाएगा प्लस 1, और ये पावर 2 नीचे. बेटा n माइनस 1 टू n. बेटा ये क्या हो जाएगा? पहले 2 को बाहर कीजिए. बेटा यहां पुट कीजिए अपर लिमिट n स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बेटा लोअर लिमिट है n माइनस 1, यहां पुट कीजिए बेटा पावर 2 है n माइनस 1 का होल स्क्वायर है. बेटा इसे सॉल्व कीजिए. बेटा ये क्या होगा? a by 2. बेटा ये क्या होगा? n स्क्वायर. बेटा इसका फॉर्मूला खोलिए. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab b1. बेटा ये जब आप ब्रैकेट खोलिएगा बेटा, ये आ जाएगा u प्लस a बाई 2. बेटा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. बेटा सारे साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 1 प्लस 2n. बेटा ये 0 हो जाएंगे, और आपका फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग n सेकेंड्स. द फाइनल इक्वेशन क्या होगा बेटा? u प्लस a बाई 2. बेटा ये क्या होगा? 2n माइनस 1, n माइनस n 0, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 0. बेटा ये हो जाएगा 2n माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग nth second. We can write, this is the application of second equation of motion. This is basically the application of second equation of motion. See here, take one example. If a ball drops freely from the height of the building, and height of the building is not known, you have to determine the height of the building. It is given that you drop the ball. It means what is the initial velocity? 0. You drop the ball. And now, during last second, the journey of ball, the ball moves half of the height. Then what is the height of the building? What is the question here? During last second of the journey, the ball moves half of the height. What is the height of the building? बेटा ये क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन को यूज करेंगे.
सॉल्व करेंगे तो बेटा लेट n is the time taken to fall n सेकंड लगा, यहां से यहां आने में कितना सेकंड लगा बेटा n, तो ये बेटा n सेकंड लगा। तो इस इक्वेशन से क्या यूज करेंगे बेटा, लास्ट n सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में, लास्ट n सेकंड के लिए डिस्टेंस मूव का फॉर्मूला बेटा, इस टाइम के दौरान व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, बेटा ये लगा आधी ऊंचाई, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग मूव किया बॉडी ने, बेटा व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस और क्या लगेगा बेटा, एक्सेलरेशन है g 9.8, बेटा टेक GS10 g/2, acceleration is g/2 because motion and gravity into 2 and -1। बेटा एक तो ये इक्वेशन हो गया, दूसरा क्या देंगे, यहां से यहां आने में n सेकंड लगा बेटा, तो व्हाट इज द हाइट, h is equal to ut plus half u तो 0 half a t square। बेटा अब इस इक्वेशन में h के जगह ये पुट करेंगे और n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। बेटा यू आर गेटिंग और नॉट, बेटा यहां से छोड़ेंगे बॉल को इतनी ऊंचाई आने में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at, बेटा व्हाट इज u 0 because we have drop the ball, what type of falling is there, free fall, so that's why u term is 0, ut what is the time n, ut term will be 0 half a ag t square, what is the time taken, n is, so in place two equation, in place of h put this half gn square, only one variable, solve this one, you will find the value of n। बेटा जब n आ गया, n की वैल्यू यहां पुट कीजिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी आ गई बेटा, आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. बेटा अब आपका काम, लिसन हियर, नाउ हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। What is relative velocity? Velocity of one body with respect to another body. Beta velocity of one body with respect to another body. Another body is called relative velocity. Is called relative velocity. Right. जैसे बेटा ये देखिए, एक कोई बॉडी इधर जा रहा है, फर्स्ट बॉडी ए इधर जा रहा है और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये देखिए, अगर ए देख रहा है बी को, तो बेटा ए ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर इधर देख रहा है अपनी आंख से, बी को देख रहा, तो बेटा इस वेक्टर का नाम होगा वेलोसिटी ऑफ बी हु इज विद रिस्पेक्ट टू ए। बेटा ए इसे देख रहा, हु इज ऑब्जर्वर ए, तो ए अपनी आंखें इधर करके देखेगा बी को, तो इस वेक्टर का नाम होगा VBA। VBA को रीड करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ही इज द ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बेटा यहां आप लगाइए ट्रायंगल ला, बेटा इस वेक्टर का नाम क्या है बी, बेटा ये ट्रायंगल ला बना, ये दोनों सेम सीक्वेंस में, और ये क्या है बेटा, दिस वेक्टर इज इन ऑपोजिट सीक्वेंस। तो बेटा इसे ऐसे करेंगे,
दिस इज VA प्लस बेटा हेड से इसका टेल. So if from the head of the first vector tail of the another vector is there, then these two vector will be in same sequence and head collide, that is this vector is in opposite sequence, these two are in same, because head of the first with the head of the first vector tail of the second vector coincides, so these two are in same sequence and your head collides, so this one is the this one will be B will be in opposite sequence. So sum of two vector in same sequence, VA plus VBA will be equals to बेटा किसके बराबर होगा, जो वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर. तो बेटा VBA हमें निकालना है, VBA को लिखेंगे क्या बेटा, VB ये उधर जाएगा बेटा माइनस VA. बेटा दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज वेक्टर फॉर्म. But to determine the actual magnitude, we will use the parallelogram law vector addition. To determine the magnitude, to determine the direction, we will use which law? Triangle law vector addition. For example, see here. Let us see some example. बेटा देखिए ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. बेटा ये क्वेश्चन है, बेटा ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, और बेटा बी जा रहा है 30 डिग्री विद द ईस्ट. वेलोसिटी B is 30 डिग्री विद द ईस्ट. बेटा ये 30 डिग्री विद द ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? 30 डिग्री. वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड and velocity of A is 30 meter per second towards north. बेटा नॉर्थ की ओर है. अब देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ, और बी का वेलोसिटी क्या बेटा, बी इज 40 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. बेटा ऑफ ईस्ट, ईस्ट से एंगल बनेगा. बेटा आपको दो चीज निकालनी है, फाइंड बेटा VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A भी निकालना है और वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B भी निकालना है और डायरेक्शन भी बताना है. कैसे बताइए बेटा, अभी जस्ट हमने स्टडी किया, सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा. VBA का मतलब क्या हुआ बेटा, VB माइनस VA, ये लिखा हमने. VBA का मतलब VB माइनस VA. बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, VB प्लस माइनस VA लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं या नहीं बेटा, लिख सकते हैं. Yes, sir. बेटा माइनस VA मैंने बताया हुआ था, किसी वेक्टर में माइनस साइन लगाइए बेटा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है बेटा, बेटा उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है. बेटा इस वेक्टर का डायरेक्शन VA का डायरेक्शन माइनस VA इधर हो जाएगा बेटा, माइनस VA. बेटा अब आपको VB और माइनस VA वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है बेटा. VB और VA का नहीं, इस सिंबल का मतलब होता है we have to determine the resultant of VB प्लस माइनस VA. VA इधर है बेटा, माइनस VA इधर हो गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा VBA. दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बेटा इन दोनों से पैरेललोग्राम बनाइए, इसका डायगोनल
रिजल्टेंट कहलाएगा बेटा। कैसे कहलाएगा? दिस इज बीबी, इसके पैरेलल ये बेटा पैरेलल टू दिस, ये वेक्टर क्या कहलाएगा बेटा? बी ए माइनस बी ए बेटा, ट्रायंगुलर और ये अपोजिट सीक्वेंस, दिस टू आर इन सेम, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू, हेडेड टकरा गए बेटा, दिस इज बी बी ए। बेटा कितनी समझ आई बात? यस टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा ये दोनों के बीच एंगल हो गया, ये हो गया 90 एम प्लस 30 120, तो थीटा हो गया बेटा 120 डिग्री। 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन बीबी एंड माइनस बीए। So what is the magnitude of VBA according to parallelogram law of vector addition? The magnitude of this is root under बेटा फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर। बेटा अभी आपके सामने ये दोनों वेक्टर है, प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, बेटा अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ बेटा? ये दोनों के बीच का एंगल बेटा मैग्नीट्यूड में यही रखिए, देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ बेटा? पहले क्या था बेटा 60, ये एंगल क्या था बेटा 60, अब ये एंगल हो जाएगा 120, यानी कि 180 माइनस जो ओरिजिनल एंगल था। बेटा व्हाट इज द ओरिजिनल एंगल? वीबी और बीए के बीच का एंगल था थीटा। जब रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे बेटा यहां हो जाएगा 2ab cos थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बेटा यहाँ थीटा था, ओरिजिनल एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, तो अब इसके बीच का एंगल क्या हो गया बेटा? दिस इज 90 प्लस 30 120। बेटा ये क्या हो जाएगा? बी की वेलोसिटी क्या है बेटा? 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी 30 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू cos 120, थीटा इज 60, ये एंगल 120, cos 120 माइनस 1/2। बेटा इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा। एंड नाउ हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन of the resultant velocity? This is first vector, so this is second vector. This is the direction of resultant vector. If this angle made by the first vector is phi, so you triangle law vector parallelogram law of tan phi is equals to b sin theta. BB, what is the angle between these two vectors? Sin 120 by a plus b cos theta 120 degree. Better this is the direction made by the resultant vector, that is the relative velocity of b with respect to a. बेटा ये इस वेक्टर की डायरेक्शन होगा किससे? वेक्टर a से।